کشمیر ترجمہ صبح 9 بجے۔ ملک بھر کی طرح میاں والی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شہر اور گرد و نواح میں مساجد، عمارتوں، گلیوں اور بازاروں کو برقی کمکموں اور دیگر اشیاء سے سجا دیا گیا۔ دوسرے شہروں کی طرح میاں والی میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کا بھرپور جوش و جذبہ پایا جا رہا ہے۔ شہر اور گرد و نواح میں مساجد اور بلند عمارتوں کو برقی کمکموں سے روشن کر دیا گیا۔ چھوٹے بڑے سبھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریوں میں مگن دکھائی دے رہے ہیں، جبکہ خاص طور پر نوجوانوں کی جانب سے بھرپور طریقے سے گلیوں اور بازاروں، مارکیٹس کو مختلف سجاوٹی اشیاء سے خوبصورت بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ منڈی بہاؤتین میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکزی جلوس کے شرکا کے لیے سندھڑی آم سے 125 من ملک شیک تیار کیا جا رہا ہے۔ ملک شیک 12 ربیع الاول کے دوران آنے والے مرکزی جلوس کے شرکا کو پلایا جائے گا۔ جانتے ہیں منڈی بہاؤدین سے مدثر عوان سے۔ جی مدثر عوان، 125 من مینگو ملک شیک تیار کیا جا رہا ہے، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، ملک بھر کی طرح منڈی بہاؤدین میں ابھی جشن عید میلاد النبی جو ہے انتہائی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے، اور میں اس وقت موجود ہوں محلہ عثمانیہ میں۔ یہاں پہ 125 من جو مینگو ملک شیک ہے وہ یہاں پہ مقامی تاجر کی طرف سے جو ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے، اور اس میں دودھ اور مینگو جو ہے وہ اسپیشل طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اس وقت جو موسم ہے مینگو کا وہ گزر چکا ہے، لیکن پھر بھی یہاں پہ جو ہے وہ اس مینگو کو سٹور کر کے جو ہے وہ یہاں پہ جو مرکزی جلوس ہے عید میلاد النبی کا اس کے لیے جو ہے ملک شیک تیار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ وہ مقامی تاجر بھی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ملک شیک جو ہے جو آپ تیار کر رہے ہیں اس وقت جو ہے وہ عام جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہے، تو یہ کس طرح جو آپ نے یہ اس کو سٹور کیا ہے، اور یہ کب سے آپ جو ہے یہ ملک شیک تیار کر رہے ہیں؟ یہ عرصہ دراز سے چل رہا ہے جی کام، اور جب یہ آم کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس موقع کے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پہ ہم اس کو سٹاک کر لیتے ہیں پہلے سے ہی۔ جیسے اب یہ ٹائم دن آیا تو انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے بعد شرکاء میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ جیسے جیسے جلوس آئیں گے تو یہ سب میں تقسیم ہو جائے گا، اور ہماری فیملی ممبر جتنے بھی ہم لوگ ہیں سب مل جل کے اپنا یہ کام کرتے ہیں۔ اچھا بالکل، یہاں پہ جو مقامی تاجر ہے ان کا کہنا ہے کہ ہم یہ مرکزی جلوس کے لیے جو ہے پہلے سے ہی جو مینگو ملک شیک ہے تیار کرنے کے لیے آم کو جو ہے وہ سٹور کر لیتے ہیں، اور یہاں کے ہمارے جو تمام فیملی ممبر ہیں۔ گوجرانوالہ میں بھی 12 ربیع الاول انتہائی مذہبی جوش و جذبے سے منایا جا رہا ہے۔ امارات کے علاوہ شہریوں نے اپنی گلیوں اور بازاروں کو برقی کمکموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجا رکھا ہے۔ نمائندہ گوجرانوالہ زاہد محمود راں جامع مسجد فیض مدینہ میں موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں؟ آج آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ آج 12 ربیع الاول کے حوالے سے ہم فیضان مدینہ گوجرانوالہ میں ہیں۔ فیض صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ آج کے دن کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے محبوب ان سے فرما دیجئے جب اللہ کا فضل ملے اور اللہ کی رحمت ملے تو یہ فلیفرحوا، یہ خوشی کریں، مسرت کا اظہار کریں۔ هو خیر مما یجمعون، یہ ان کے لیے دن دولت جمع کرنے سے بہتر ہے۔ الحمدللہ چونکہ خوشی کرنے کا قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے کہ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، قرآن نے کہا کہ جب فضل ملے، جب رحمت ملے تو اس وقت خوشی اور مسرت کا اظہار کریں۔ تو اللہ کی جی ان کا کہنا تھا کہ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے بڑا ہی خوشی کا دن ہے، اور سب کو چاہیے کہ نماز پڑھیں، اللہ کا۔ بہت شکریہ آپ کا تمام تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ پورے ملک کی طرح جیلوں میں بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تیاریاں جوش و جذبے سے جاری ہیں۔ جیلم سے بتا رہے ہیں مصطفیٰ بٹ۔ جی مصطفیٰ بٹ بتائیے گا کہ کیسی تیاریاں چل رہی ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جیلم شہر میں۔ پورے ملک کی طرح جیلم میں بھی عید میلاد النبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ تو میں ایک ایسے علاقے میں موجود ہوں جہاں سے 12 ربیع الاول کو ایک بہت بڑا جلوس نکالا جاتا ہے۔ رات کو بھی جہاں پہ گہما گہمی دیکھنے میں آئی ہے، جہاں پہ بچے، جوان، بوڑھے سب اس میں شریک ہیں۔ تو میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں کہ بابرکت دن ہے یہ ہمارے لیے،
और जोश और जज्बा भी आप देख रहे हैं सारे। अल्हम्दुलिल्लाह जुलूस अभी भी निकाल रहे हैं और सुबह की भी भरपूर तैयारी है हमारी। जी आपने सुना, शहरी ये कह रहे हैं कि जुलूस रात को भी निकाले जाएंगे और सुबह की भी तैयारी जोश हो। बहुत शुक्रिया आपका तमाम तफसीलात से अपडेट करने के लिए। पूरे आलम इस्लाम की तरह शुजाबाद में भी आक़ाए दो जहां सरवर कौनात ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न वलादत की तैयारियां अरूज पर हैं। लोग अपने घर गली मोहल्लों को बरकी कुमकुमों से सजाने में मसरूफ हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा टीवी टुडे राव ताहिर खालिद से। जी राव ताहिर खालिद, बताइएगा कि किस तरह से तैयारियों में लोग जुटे हुए हैं। जी, पूरे आलम इस्लाम की तरह शुजाबाद में भी जश्न आमद रसूल इंतहाई अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। गली गली कूचा कूचा सरकार की आमद मरहबा, सोने की आमद मरहबा की सदाओं से गूंज रहा है। आशिकान रसूल ने अपने घरों को सजाने के लिए शहर में कायम स्टॉल्स का रुख कर लिया है। शहर भर को दुल्हन की तरह खूबसूरती से सजा दिया गया है। थाना चौक, चांदनी चौक, रेलवे रोड, एसी ऑफिस, म्यूनसिपल कमेटी, THQ अस्पताल, क़यामुद्दीन आरती और तारिक सियालवी वाली गलियां, सर्कुलर रोड, नूरी जामे मस्जिद, दरबार फूलशाह, दरबार फकीर लाला साईं समेत पूरे शहर को बरकी कुमकुमों से इंतहाई खूबसूरती के साथ सजाया गया है, जो कि रात में भी दिन का समा पेश कर रहे हैं। लोगों ने अपने घरों पर मिट्टी के दिए जलाकर चिरागा भी किया हुआ। खबर शामिल करते हैं चकवाल से। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रफाकत महमूद एक ऐसे आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी को बरकी कुमकुमों, रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के मॉडल से सजा रखा है। जी रफाकत, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक आशिक रसूल के साथ जिन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार अनोखे तरीके से किया है, जिन्होंने अपनी गाड़ी को मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खाना काबा के मॉडल के साथ सजाया। आइए इनसे जानते हैं कि ये अपनी मोहब्बत का इजहार कब से कर रहे हैं और इनका क्या मकसद है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पेशे के लिहाज से कपड़े का ताजर हूँ। 12 साल से अल्लाह का शुक्र है ये मैं गाड़ी सजा रहा हूँ। गाड़ी सजाने का मकसद मेरा सिर्फ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है दिल में, क्योंकि सरकार आए हैं तो हमें कुरान मिला है, सरकार आए हैं तो हमें रमज़ान मिला है, सरकार आए हैं तो हमें ईद मिली है। तो इसलिए ये हमारी सबसे बढ़कर ईद है। तो हम इसलिए गाड़ी सजाते हैं कि चले हमारे सजाने से कोई और भी गाड़ी सजाए, कोई और भी लाइटिंग लगाए। तो साथ साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह करे हमारे दिल भी रोशन हो जाए, सरकार की सीरत पे हम चल पड़ें, जो रास्ता हमें सरकार ने दिखाया। नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान और सेक्रेटरी जनरल मिली यकजहती कौंसिल लियाकत बलोच ने कहा कि उम्मत के लिए बड़ी आजमाइश का दौर है। मदरसा जामिउल उलूम में नौ मुंतखब अमीर जमात इस्लामी मुल्तान डॉक्टर सफदर इकबाल हाशमी की तकरीब हल्फ बर्दारी से लियाकत बलोच ने खिताब किया। अमीर जमात इस्लामी जनूबी पंजाब राव मोहम्मद जफर ने भी खिताब किया, जबकि राव जफर इकबाल, मियाँ मुनीर अहमद बोतला, मौलाना अब्दुल वहीद अख्तर, डॉक्टर अशरफ अली अतीक, कमर मोहम्मद सद्दीक और दीगर ने शिरकत की। लियाकत बलूच का कहना था कि कामयाबी के बड़े इम्कानात हैं, मगर इसके लिए उम्मत को इत्तेहाद और सब्र और इस्तकामत का सबूत देना होगा। बातिल कुव्वतों को नाकाम और हक को गालिब करने के लिए वहदत और यकजहती को फ़रोग देना होगा। अल्लाह के अहकामात और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और इश्क के साथ इनके फरामीन पर दिलो जान से अमल किया जाए तो आज भी उम्मत मुसलमा को अपना खोया हुआ मकाम और मर्तबा मिल सकता है। खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का यही पैगाम है। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क भर की तरह खानेवाल में भी जोश व खरूज से मनाया जा रहा है। THQ अस्पताल खानेवाल में भी एक अजीमुश्शान महफिल मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। देखते हैं खानेवाल से अदनान रसूल की ये रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल खानेवाल में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मनाने के लिए महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद किया गया। महफिल का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। हजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नात खानी की सादत सेकंड ईयर के तालबा ने हासिल की। तकरीब की मेहमान ख़ुसूसी CEO डॉक्टर मारिया मुमताज़ थी, जबकि सदारत MS डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी ने की। महफिल मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डॉक्टर मानुल्लाह ताहिर, डॉक्टर सजाद सयाल, डॉक्टर ताहिरा गफार, एडमन ऑफिसर असफंदियार और डॉक्टर नर्सिस, पैरामेडिकल स्टाफ और मीडिया नुमाइंदगान ने भरपूर शिरकत की। मुकर्रिर ने अपने अपने खिताब में कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए मशले रहा है। जिसने ईद मिलादुन नबी से ये सादत के एक इजलास हुआ जिसमें तमाम डॉक्टर और हमारे तिब्बी अमले ने शिरकत की और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया गया। तो इस मौके पर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि हम अब हुर्मत रसूल पर हर मुसलमान अपनी जान देने के लिए भी कुर्बान है और फ़्रांस में जो गुस्ताखाना अल्फाज अदा किए इस पर पूरी
उम्मत मुस्लिमा मुस्तरब है और तिब इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। महफिल के अख्ताम पर आलम सलाम और मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करवाई गई। कैमरामैन खालिद जट के साथ अनान रसूल, ब्यूरो चीफ टीवी टुडे, खानेवाल। भक्खर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेरे एहतमाम रबीउल अव्वल का मशल बरदार जुलूस जो है जारी और सारी, जहां पर मस्जिद गौसिया बानो बाजार से बरामद हुआ। जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसीर तादाद मौजूद थी। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए सख्त तरीन इंतजामात, पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी भी जुलूस के हमरा रही। शहर की फजा गुलाम है रसूल के गुलाम है के नारों से गूंज उठी। मुकर्ररीन शुरका से खिताब करते हुए कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हमारे लिए बाइस से खुशी, बाइस से मुसरत और हमारी बख्शिश और नजात का जरिया है। जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर गुजर खान के नौशाही बरादरान की जानिब से रंग बिरंगी लाइटों से सजी गाड़ी हर एक की तवज्जो का मरकज बनी हुई है। देखते हैं अब्दुल सत्तार न्याज़ी की रिपोर्ट। ये कह के दरे हक से ली मौत में कुछ मोहलत, मीलाद की आमद है महफिल को सजाना है। पूरी दुनिया में बसने वाले उशकान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अपने अंदाज में आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत व अकीदत का इजहार कर रहे हैं। गुजर खान में हर साल की तरह इस साल भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शयान शान तरीके से मनाने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। चौधरी केबल नेटवर्क के रूह रवां चौधरी शफकत नौशाही और चौधरी काशिफ नौशाही ने गुज़श्ता सालों की तरह इस साल भी अपनी गाड़ी को खूबसूरती के साथ सजाया है। रंग बिरंगी लाइटों से सजी गाड़ी हर एक की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आज रात ये गाड़ी अंदरूनी शहर सड़कों पे, जबकि कल दिन को जुलूसों की जीनत बनेगी, जो नौशाही बरदरान की आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अमली तौर पर इजहार है। कैमरा टीम के साथ अब्दुल सत्तार न्याज़ी, टीवी टुडे। और अब खबर यह है कि पीर महल में जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। असिस्टेंट कमिश्नर और उलमा कराम के माबैन अहम मीटिंग भी हुई। मीटिंग में कारी हबीबुर रहमान, कारी मंजूर, आबिद खतरान समेत म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स ने शिरकत की। असिस्टेंट कमिश्नर राना गुलाम मुर्तजा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिला में इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। और अब खबर है कनकूर से, जहां पर ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूसों और महाफिल-ए-नात के सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया। ईद मिलादुन नबी के मुनासबत से जिला भर में 16 रैलियां निकाली जाएंगी और 2 महाफिल-ए-नात का एहतमाम होगा। जुलूसों और रैलियों की सिक्योरिटी के लिए 2144 पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात होंगे। बिहाड़ी बुरेवाला की मुकामी अदालत ने थाना गंगोबंडी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली की अबूरी जबान से खारिज मुल्जिम साबिक MNAs असगर अली और नजीर जट पर अफजाल नामी शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिहाड़ी बुरावाला की मुकामी अदालत ने थाना गंगोबंडी कत्ल केस का फैसला सुना दिया। 2 साबिक अरकान कौमी असम्बली की अबूरी जमान से खारिज मुल्जिम साबिक MNAs असगर अली और नजीर जट पर अफजाल नामी शख्स के कत्ल का मुकदमा दर्ज है। पत्तों की फूलनगर में ताजिर बरादरी और शहरियों ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली और फ्रांसीसी सदर के खिलाफ पूरे जिला में एहतजाजी मुजाहरा भी किया। मुल्क भर की तरह फूलनगर में ताजिर बरादरी और शहरियों ने फ्रांसीसी सदर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। रैली में शुरका ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले फ्रांस से सिफारती ताल्लुकात खत्म करने के फिलफोर्स सफीर को मुल्क बदर करने और फ्रांस की मुआशी मसनूआत को फौरी बाइकआउट करने का मुतालबा किया। शहरियों का कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। नामूस रसालत के लिए आखिरी हद तक मर मिटने के लिए तैयार हैं। ये हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ नहीं कर रहे, बल्कि कसूर, फूलनगर और पत्तोकी के दीगर शहरों में भी हम एहतजाज करते रहेंगे। पत्तोकी थाना सराय मुगल पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम से 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात भी शुरू कर दी हैं। पत्तोकी थाना सराय मुगल पुलिस की जुर्म पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई। मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुलजिम से 1 किलो 800 ग्राम चरस बरामद कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी।
मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 रुकनी मोटरसाइकिल डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमों के कब्जे से 19 मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम मुख्तलिफ इस्लामी वारदातें करके मोटरसाइकिल चोरी करते थे। मजीद तफसीलात जानते हैं मुदस्सर अवान से। जी मुदस्सर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मंडी बहाउद्दीन पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में आई है। यहाँ पे एक डकैत गैंग, 4 रुकनी डकैत गैंग जो है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके कब्जे से 19 मोटरसाइकिल जो है वो बरामद किए गए हैं। DPO सैयद अली रजा ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि ये डकैत गैंग जो है ये मुख्तलिफ अजला में वारदातें करते थे, जिनमें खारियाँ, जेलम, गुजरात, हाफजाबाद और इसके अलावा जो दीगर अजला है वो भी शामिल है। और ये जो डकैत गैंग है ये 5 मिनट के अंदर जो मोटरसाइकिल है उनको चुरा के वहाँ से रफू चक्कर हो जाते थे और जाकर मुख्तलिफ जगहों पे इसको जो है वो सेल आउट कर देते थे। जबकि DPO सैयद अली रजा का ये भी कहना था कि बरामद होने वाले 19 मोटरसाइकिल जो है वो असल मालकान के हवाले कर दिए गए हैं और मजीद तफ्तीश जो CEO म्यूनिसिपल कमेटी भक्कर मुबशर कलीम गिल ने कहा कि TMA भक्कर में 100% हाजिरी को यकीनी बना दिया है। अवामी मसाइल पर कोताही हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। TV टुडे से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए CEO म्यूनिसिपल ने कहा कि अवामी मसाइल को हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। इंशाअल्लाह कुछ दिन में अवाम को वाज़ेह तब्दीली नजर आएगी। कबीरवाला में SPO पंजाब के बाइख्तियार प्रोजेक्ट के ताउन से कबीरवाला में DPO खानेवाल ने म्यूनिसिपल कॉम्प्लेक्स कबीरवाला में खुली कचहरी मुनक्किद की। इस मौका पर ASP कबीरवाला, SHOs, तफ्तीशी अफसरान और शहरियों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। DPO ने कहा कि पुलिस अफसरान साइलिन के साथ तहम्मुल और बर्दबारी से पेश आएं और इनके मसाइल खंदा पेशानी से सुनकर फौरी इंसाफ मुहैया करें। खानका डोगरा के नवाही गांव चादर चक में बासर अफराद का निकासी के नाले को बंद करने से गांव की गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। मजीद जानते हैं सरदार कामरान डोगर की इस रिपोर्ट में। डोगरा के नवाही गांव चादर चक में बासर अफराद ने तहसील इंतजामिया को बेअसर कर दिया। अस्सी के नाले की तकरीबन 6 कनाल जमीन पर कब्जा करके वो अपनी जमीन में शामिल कर लिया। नाला बंद होने से चादर चक की जामिया मस्जिद के रास्ते बंद। मस्जिद के जो 2 रास्ते थे, दोनों तरफ से गंदा पानी खड़ा होने से मस्जिद में जाना दुश्वार हो गया। पढ़ने वास्ते बड़ी मुश्किल है, पानी बहुत आगे पीछे खड़ा है, इसलिए मस्जिद में नहीं आ सकते। मस्जिद के विच में आने नूं रस्ता जड़ा भी बिल्कुल नहीं हैगा। वजीर आला पंजाब डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा AC सफदराबाद से गुजारिश है हमारा ये मुतालबा जल्द से जल्द हल किया जाए। शुक्रिया। की वजह से नमाजियों ने जामिया मस्जिद के बाहर तहसीली इंतजामिया के खिलाफ। और अब खबर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एजुकेशन मियांवाली डॉक्टर मोहम्मद वजीर आका ने कंधिया मरकज के मुख्तलिफ स्कूल्स का दौरा किया। CEO एजुकेशन मियांवाली डॉक्टर मोहम्मद वजीर आका ने कंधिया मरकज के गवर्नमेंट हाई स्कूल और लंगरे खेल कंधिया का दौरा किया। स्कूल में सेहत, सफाई, तालीमी मयार, असातिज़ा, तलबा, हाजिरी समेत कोरोना और एंटी डेंगू SOPs का मुआयना भी किया। और अब खबर यह है कि थाना सिटी चकवाल पुलिस की कार्रवाई, 3 बैनुल-इस्लाही मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार। मुलजिमों से 17 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली। देखते हैं रबाकत महमूद की रिपोर्ट। चकवाल पुलिस ने DPO मोहम्मद बिन अशरफ के हुक्म पर कार्रवाई करते हुए 3 मोटरसाइकिल चोर गैंग गिरफ्तार कर लिए। 17 मोटरसाइकिल बरामद हुए जिनकी मालियत तकरीबन 9 लाख रुपए है। इसी हवाले से STPO सदर सर्कल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें इनका कहना था कि चकवाल पुलिस इन डकैतों के खिलाफ मुतहरिक है, जल्द ही जिला भर से इनका सफाया कर दिया जाएगा। मजीद TV टुडे से बात करते हुए उनका कहना था कि सिटी की हदूद में जो है चकवाल की काफ़ी अरसे से जो मोटरसाइकिल चोरी बड़ी अरूज पे थी, उस हवाले से DPO साहब की हिदायत पे SHO साहब ने टीम तश्कील दी, जिन्होंने टेक्निकल सर्विलेंस और दूसरे हमारे डिकॉय और दूसरे हमने टेक्निक इस्तेमाल करके 3 गैंग गिरफ्तार किए। और इनका जो तरीका वारदात था कि जो भी अनअटेंडेड मोटरसाइकिल होता था उसको ये चोरी करते थे और दूसरे ज़िले में जाके इसको बेचने की कोशिश करते। इन 3 गैंग से हमने मजबूत तौर पर 17 मोटरसाइकिल। गुजरांवाला में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जमात इस्लामी खातीन विंग का एहतजाजी मुजाहरे में खातीन बड़ी तादाद में शरीक हुई। गुजरांवाला में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के खिलाफ जमात इस्लामी खातीन विंग ने एहतजाजी मुजाहरा किया। खातीन ने फ्रांस के वजीर आज़म के खिलाफ नारेबाजी भी की। मुल्तान एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि हुकूमत के बर्बाद इक़दाम से चीनी और सब्जियों की कीमतें एतदाल पर हैं। आड़ती चीनी की सप्लाई में कमी न आने दें। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान ने कहा कि चीनी की सप्लाई में तसलसल से दस्तयाबी को यकीनी बनाया गया है। आड़ती चीनी की सप्लाई में कमी न आने दें और इस बारे में उन्हें
کوئی شکایت ہو تو فوری انتظامیہ سے رجوع کریں، ہم فوری طور پر ان کی شکایت کا ازالہ کریں گے۔ آڑھتیوں کے نمائندوں نے بتایا کہ آلو، پیاز، ٹماٹر کی فصل ٹھٹھا بدین، سوات، سکر اور افغانستان سے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اتار چڑھاؤ ہے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محمد طیب خان نے کہا کہ مقامی فصلیں ابھی لیٹ ہیں۔ شیخ پورہ صوبائی وزیر میاں خالد محمود نے ڈسٹرکٹ جیل میں قائم اسپتال میں ادویات کی فراہمی اور علاج معالجے کی سہولیات کا جائزہ لیا۔ صوبائی وزیر نے جیل میں قائم اسکولوں میں قیدیوں کے لیے تعلیمی سہولیات کا بھی جائزہ لیا۔ جیل کے باورچی خانے میں گئے اور قیدیوں کے لیے تیار کھانے جانے والے کھانے کا بھی معیار چیک کیا۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل عارف گل نے صوبائی وزیر کو جیل کے دورے کے دوران قیدیوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات کے متعلق بریفنگ بھی دی۔ ڈی ایس پی بھلوال ناصر امان ایس ایچ او ذیشان کی پریس کانفرنس۔ پولیس کی سالم موٹر وے پر بڑی کارروائی، 5 کلو ڈرگ آئس برآمد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بھلوال تھانہ پلوان پولیس نے خاتون سمیت 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ ملزم کوئٹہ سے لاہور ڈرگ آئس لے کر جا رہے تھے۔ ملتان اسموگ کے خدشہ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے آلودگی پھیلانے والے ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں 2 پلانٹ سیل کر دیے۔ ملتان اسموگ کے خدشہ کے پیش نظر ضلعی انتظامیہ نے آلودگی پھیلانے والے صنعتی اداروں کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے زہریلا دھواں فضا میں چھوڑنے پر ملتان انڈسٹریل اسٹیٹ میں 2 پلانٹ سیل کر دیے ہیں۔ کمبر میں پولیس کی جانب سے پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سردار خان چانٹیو اور برہان خان چانٹیو کے ڈیرو ہاؤس پر پولیس گھیراؤ کے خلاف کارکنوں کا احتجاجی مظاہرہ۔ کارکنان کی جانب سے بھٹو چوک سے ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی جو شہر کے مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے شہید بینظیر بھٹو پریس کلب پہنچی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی شہری اتحاد اور سشوا کے رہنماؤں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ منتخب رکن اسمبلی کے گھر کا تقدس پامال کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ رکن اسمبلی سردار خان چانٹیو اور برہان خان چانٹیو عدالتوں اور قانون کا احترام کرتے ہیں۔ گنبد کے علاقے اگرا کے قریب سے ایک نوجوان کی لاش ملی ہے۔ پولیس نے لاش تحویل میں لے کر کارروائی شروع کر دی ہے۔ نوجوان سنجے کپور کا تعلق کراچی سے ہے۔ گنبد گمس ہسپتال میں پوسٹ مارٹم کے بعد لاش اہل خانہ کے حوالے کی جائے گی، جبکہ متوقع کے اہل خانہ کا کہنا ہے کہ سنجے کپور کو زہر دیا گیا ہے۔ پیروزن کے نواحی گاؤں باقی خان امان میں اچانک آگ لگنے سے 5 کچے گھر جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئے۔ گاؤں کے مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھائی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارا تمام سامان جل گیا ہے، متعلقہ ایڈمنسٹریشن کو اطلاع دی لیکن کوئی امداد نہیں ملی۔ نیب ٹیم سکھر کا شکارپور میں محکمہ خوراک مذہبی میں گندم کے گودام پر چھاپا۔ نیب ٹیم نے ریکارڈ تحویل میں لے کر گودام کو سیل کر دیا۔ نیب سکھر کو اطلاع ملی کہ محکمہ خوراک گودام میں ہزاروں گندم کی بوریوں کو غائب کیا گیا ہے، جبکہ گندم کے گودام میں موجود بوریوں میں گندم کی مقدار کم اور مٹی اور پتھر اور بھوسے کی مقدار زیادہ ہے۔ نیب ٹیم نے چھاپہ مار کر ریکارڈ کو تحویل میں لے کر گودام کو سیل کر دیا۔ اوکاڑا کے علاقے منڈی احمد آباد میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ڈکیتی کے نیت سے چھپے ہوئے 5 ڈاکو گرفتار کر لیے۔ گرفتار ڈاکوؤں سے بھاری مقدار میں ناجائز اسلحہ اور پالے مسروقہ برآمد کر لیا گیا۔ ملزموں نے چوری اور ڈکیتی کی متعدد وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ لاڑکانہ میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے فرانس میں گستاخانہ خاکوں کی اشاعت کے خلاف احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ احتجاجی ریلی دودائی روڈ سے قائد عوام پریس کلب لاڑکانہ تک پہنچی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں بینرز اور پمفلٹ اٹھائے ہوئے تھے۔ فرانس حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی گئی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ہماری جان و مال، عزت اور اپنے بچے بھی شان کریمی پر قربان ہوں۔ کنکوٹ میں روپوش اشتہاری اور دیگر ملزمان کے خلاف پولیس کا کریک ڈاؤن۔ ایس ایس پی کشمور کی ہدایات پر ایس ایچ او تھانہ خندقوٹ اور ان کی ٹیم نے جانوروں کے اسپتال کے قریب کارروائی میں اشتہاری ملزم میر ہزار سبزوئی کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم متعدد مقدمات میں کنکوٹ پولیس کو مطلوب تھا۔ کنکوٹ پولیس نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے روپوش اشتہاری ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ایس ایس پی کشمور کی ہدایت پر ایس ایچ او اور ان کی ٹیم نے دوران گشت کارروائی کرتے ہوئے اشتہاری ملزم بشیر کو گرفتار کر لیا۔
टंडो आदम में हीरा पब्लिक स्कूल में ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में सीरत नबी के उन्वान से तकरीब का एहतमाम किया गया। सादा मगर पुरवकार तकरीब में तलबा के माबैन हुस्न क़दर, हुस्न नात और सीरत नबी के उन्वान से तकरीरी मुकाबले करवाए गए। पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को इनामात दिए गए। नन्हे तलबा और तालिबात ने टैबलोज भी पेश किए। नवाबशाह के इलाके सिकरंड में वॉलीबॉल खेलते हुए दो ग्रुपों में झगड़ा हो गया। झगड़े के नतीजे में 2 अफराद जख्मी होकर अस्पताल पहुंच गए। झगड़े के नतीजे में 2 अफराद इंसार शेख और रावल मल्लाह जख्मी हुए हैं। जख्मियों को फौरी तौर पर मुतल्लिका अस्पताल सिकरंड मुंतकिल कर दिया गया। नवाबशाह में मुख्तलिफ मजहबी तंजीमों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों से फ्रांस के सदर के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली इलाकों से होती हुई नवाबशाह प्रेस क्लब पहुंची और इस मौका पर फ्रांस के सदर का पुतला भी नजर आतिश किया गया। इस मौका पर मुजाहिरीन का कहना था कि हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने खिलाफ हर अल्फाज बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी में एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। कनकोट में खानपुर रोड हादसे में जख्मी होने वाले नौजवान का इंतकाल हो गया, जिसमें जख्मी नौजवान को सहूलियात न होने की वजह से सक्खर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया था। खानपुर इंडस हाईवे पर कार और ट्रॉलर की टक्कर के नतीजे में कनकोट का रिहायशी कार सवार रेशम लाल शदीद जख्मी हो गया था, जो आज जख्मों की ताप न लाते हुए इंतकाल कर गया। बन्नू में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के क़याम के सिलसिला में सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के आला ऑफिसर्स एक रोज़ा दौरे पर बन्नू पहुंच गए। बन्नू यूनिवर्सिटी में मौजूद IT सहूलियात और दीगर इंतजामात के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंतजामिया ने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड के आला ऑफिसर्स को ब्रीफिंग दी। मीटिंग के बाद IT एक्सपोर्ट बोर्ड के आला अहदेदारों ने बन्नू यूनिवर्सिटी में साइट का दौरा भी किया। डिप्टी कमिश्नर बन्नू और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की हिदायत पर कमसिन और नौउम्र बच्चों की मोटरसाइकिल रिक्शा चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का मकसद हादसात पर काबू पाना और बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है। कानून के मुताबिक पहले से 18 साल से कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग पर पाबंदी आयद है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट के लिए देखते रहिए TV टुडे।